Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be covering our last question of exercise 4.2, that is question number 6. So this is question number 5 that we have already discussed in our previous video and I hope you understood this. So now I am starting with question number 6 of this same exercise. Okay, so question number 6 is again on page number 76 of our NCERT book. Exercise 4.2. Question number 6 says a cottage industry. So it is a little lengthy question. Still, I am going to write it. Children, see, everybody is not there with their books open in front of this video, right? So I am going to write this question. If you already have your book and you don't want this question on my board, so you can just skip the video for like 30 to 45 seconds so that आपको directly फिर solution मिल जाएगा. But there are some children जिनके पास book available नहीं होती, so for them I have to write the question also. A cottage industry produces a certain number of pottery articles. In a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice the number of articles was three more than twice the number of article produced on that day. So, if the total cost of production was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. So, solution
Now let's read the question again. So what does the question say? A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक cottage industry है that is producing a certain number of pottery articles, or we can say certain number of toys in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was जितनी कॉस्ट लग रही है उसको प्रोड्यूस करने में, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट लग रही है, दैट वाज 3 more than twice the number of articles produced. सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में 10 प्रोड्यूस हो रहे हैं, सो 10 का ट्वाइस, उसमें भी 3 प्लस 10 का ट्वाइस 20 प्लस 3, 23 रुपीज है वन टॉय की कॉस्ट. ठीक है, सो बेसिकली कुछ नंबर ऑफ टॉयज हैं, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है वन टॉय की, और वो क्या दे रखी है, ट्वाइस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस प्लस 3. ठीक है, सो इफ द टोटल कॉस्ट, और हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है उस दिन की, दैट इज ₹90. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज लेट, और हमें लेट क्या करना है, नंबर ऑफ pottery articles produced in a day be x. So let the number of articles produced be in a day be x. Right, अब number of articles produced in a day तो x हो गए, तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ x प्लस 3, 2x प्लस 3. ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने कुछ भी न्यू नहीं किया. दिस इज गिवन 3 more than twice the number of articles produced. वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया. नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस है x, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल हो गई 3 more than twice the number of articles produced, so 2x plus 3. done. Now according to question, देखो वी नो दैट जो जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, अगर हमें वन आर्टिकल की कॉस्ट गिवन है और हमें गिवन है टोटल 10 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और वन आर्टिकल की कॉस्ट है ₹2. सो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 2 20. सिमिलरली यहाँ पे भी हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, सो वील गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू 2x plus 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे x, और वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें गिवन है 90. सो दिस विल बी इक्वल टू x इंटू 2x स्क्वायर, देन x इंटू 3x. सो 90 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0. तो ये हो गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो इसको सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करना पड़ेगा, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा यहाँ पे 3x का. सो 3x विल बी स्प्लिटेड इन 2 पार्ट्स, और कैसे स्प्लिट होगा कि माइनस करके तो 3x आएगा, एंड मल्टीप्लाई करके आएगा 2 into 90 दैट इज 180. 2 into 90 दैट इज 180. सो 180 के पहले हम एलसीएम से सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं. 2 9 18 0, 2 45 90. अब 45 is not divisible by 2 anymore, but it is divisible by 3. So 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5. So we have 2 2 3 3 5. राइट. अब इनके पेयर कैसे बनाएंगे हम कि माइनस करके हमें 3 मिले. सो देखो 2 2s are 4,
4 5 20, 20 इंटू 3 3 9, 20 इंटू 9 हो गया एक पेयर. देखो 2 2 4, 5 20 एंड 3 3 9. एक पेयर तो ये हो गया. नेक्स्ट पेयर हम ले लेते हैं 3 3 9, 9 3 3 9, 9 5 45, 45 इंटू 2 2 4. देखो सेकेंड पेयर ऐसे हो गया 3 3 9, 9 5 45 इंटू 2 2 4. राइट. थर्ड पेयर एक और पेयर बनाते हैं 2 2 4, 4 3 12, 3 5 15. So 12 इंटू 15 हो गया एक पेयर. ओके सो वी हैव 3 पेयर. अब हमारे पास कुछ पेयर आए हैं. नाउ लेट्स चेक कि इनमें से किसी में आंसर आ रहा है या फिर नहीं. सो वी वांट माइनस करके 3. ठीक है. 20 माइनस 9 3 नहीं आएगा. 45 माइनस 4 3 नहीं आएगा. बट 15 माइनस 12 से 3 आ जाएगा. सो इट मीन्स 15x माइनस 12x. दिस इज द करेक्ट बाइफिकेशन. वी गॉट आर करेक्ट बाइफिकेशन. तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. 2x square as it is plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0. अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा एंड इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा. सो आई थिंक फ्रॉम दीज टू terms x is common. We are left with 2x plus 15. Similarly from these two terms I think 3 minus 3 is common. ठीक है. माइनस क्यों कॉमन लिया? बिकॉज माइनस दोनों में है बट हमें चाहिए दोनों में प्लस. ठीक है. एंड 3 कॉमन इसलिए बिकॉज 3 इज कॉमन फ्रॉम दीज टू नंबर्स. सो 4x. ओके सो 3 के बाद भी कोई नंबर है जो इसमें कॉमन है. 4 कॉमन लेंगे. 6 कॉमन आएगा. यस. So minus 6 कॉमन आएगा. We are left with 2x plus 6 1s 6, 6 5s 30. Yes. So again bracket same हो गया. देखो पहले मैंने 3 कॉमन लिया था. 3 भी कॉमन था बट उसके बाद भी हमारे पास कुछ कॉमन आता. 2 कॉमन आता उसके बाद. So 3 2 6 हमने डायरेक्टली 6 कॉमन ले लिया. Now taking the brackets, taking this whole bracket common, 2x plus 15 को हम कॉमन लेंगे. We are left with x minus 6 equal to 0. So 2x plus 15 equal to 0 and from here x minus 6 equal to 0. यहाँ से तो x हो गया 6 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2x equal to 15. So x equal to 2x equal to minus 15. Is this visible? Yes, it is. but अब इसके बाद visible नहीं होगा. देखो 2x equal to minus 15. So x equal to minus 15 upon 2. यही होगा next value. So now we have two values of x. इधर से x आएगा minus 15 upon 2 and from here x equals to 6. Correct? अब कौन सी वैल्यू हम x की पुट करेंगे? देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं हमारे पास x. ठीक है. अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी फ्रैक्शन में और नेगेटिव तो नहीं आ सकते. ठीक है. इट मीन्स अगेन चिल्ड्रन यहाँ पे भी विल टेक दी पॉजिटिव आंसर. ये वाला आंसर नहीं लेंगे. विल टेक x इक्वल टू 6. ठीक है. सो वी शुड नो चिल्ड्रन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई. दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए हम पॉजिटिव वाला आंसर हमेशा यूज करेंगे. सो x इक्वल टू 6. इट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स. हमसे क्या पूछा है? वी आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. राइट. सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6 and we are asked to find the cost of each article. So cost of each article, cost of production of each article 2x plus 3. x की प्लेस पे हम पुट करेंगे 6.
ठीक है, बिकॉज x की वैल्यू आई है 6, 6 टू से 12 प्लस 3 15. सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 15. सो 6 इंटू 15 हम करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90. आई होप आई एम क्लियर. दिस वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन दिस so that we can briefly okay, so that we can briefly understand this again. Okay, so I hope you have written this question. What we did in this question was, number of articles को हमने x लिया, so cost of production of each article according to question हो गया 2x plus 3 because it is given in the question, right? And we know that number of articles into cost of production of one article जब भी हम multiply करेंगे, we'll get the total cost of production. So total cost of production इन दोनों को multiply करके हमने लिखा and also it was given 90. So हमने उसको solve किया by middle term splitting. So we got two answers of two values of x. The negative value is ignored. Always we have to take the positive one. So positive value of x is 6. So it means number of articles हो गए 6 and cost of production of each article हो गया 15 because 2x plus 3 में जब हम x की value 6 डालेंगे we'll get 15. So this was a very easy question. I hope you have written this in your notebook also. Now we are heading further to a very simple extra question. Because this exercise is now complete. Exercise 4.2 is now complete. So we are heading to a extra question. And from our next video, we'll be starting with a new exercise. All right. So question is, find the roots of the quadratic equation
3x² minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. So this is our question. Extra question है ये एक. Okay, so we have to find the root of quadratic equation 3x² minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. See, now it is already in correct position x² x and then constant term. It means हमें bifurcate करना है minus 2 root 6x को. Now children, minus 2 root 6x को जब हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, I don't think कि कैसे स्प्लिट होगा. चलो पहले तो ये देखते हैं. सो प्लस करके आएगा minus 2 root 6x और ऐसे कोई भी दो नंबर्स नहीं है जिसको प्लस करके रूट में आंसर आए. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू, देखो प्लस करके आना चाहिए minus 2 root 6x एंड मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 3 into 2 that is 6. राइट. सो 6 के फैक्टर्स पहले हम सारे लिख लेते हैं. 1 into 6 into 1, 2 into 3, that's it. ठीक है. सो 6 और 1 को प्लस करेंगे 7 आएगा. 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 आएगा. तो 2 root 6 तो नहीं आया. ठीक है. सो whenever we have questions like this children, what we can do is, देखो अब स्प्लिट करना है जिस टर्म को इसमें, दैट इज इन रूट, बट वो 2 रूट में है, मतलब 2 root 6 है. राइट. देखो जब भी हमें x को x प्लस एक्स करना होता है, हमें पता है वी विल गेट 2x. राइट. सो 2x को स्प्लिट करना भी इजी है, x प्लस एक्स. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे है हमारे पास 2 root 6. सो 2 root 6 को जब हम स्प्लिट करेंगे, वी कैन राइट दिस एज root 6 plus root 6 because root 6 plus root 6 is 2 root 6 only. राइट. सो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हमारे पास 2 भी है साथ में, वी कैन टेक दिस एडवांटेज ऑफ 2 एंड वी कैन राइट दिस एज, इसको डायरेक्टली हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, 3x² as it is minus root 6x minus root 6x plus 2 equal to 0. अब मैंने यहाँ पे दोनों बार माइनस क्यों लिखा, बिकॉज चिल्ड्रन माइनस माइनस ही प्लस होता है. मैं अगर दोनों में यहाँ पे प्लस प्लस लिखती तो ये होता प्लस 2 root 6x, but we want minus 2 root 6x children. That is the reason I have to write minus. अगर एक माइनस होगा तो 0 हो जाएगा. ये देखो प्लस root 6x minus root 6x कट के 0. So that is the reason हमें दोनों माइनस लेने पड़ेंगे, बिकॉज माइनस माइनस होता तो प्लस है, बट साइन नेगेटिव का आता है. So that is the reason we have to take minus root 6x minus root 6x, because जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 root 6x and साइन नेगेटिव, then we will get this term. ओके. सो अब हमने इसको ऐसे बाइफिकेट सिर्फ इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास था रूट में टर्म थी, रूट में, एंड दैट टू विद अ 2. जब भी 2 के साथ होगी तो ये एडवांटेज हम ले सकते हैं कि उसको हम ऐसे ही बाइफिकेट करके 2 times लिख सकते हैं. नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम दीज 2 terms एंड देन फ्रॉम दीज 2 terms, व्हाट वी विल गेट. देखो रूट 6 को हम रूट 3 into रूट 2 भी लिखते हैं. ठीक है. बिकॉज ये ऐसे होता है 3 into 2 6, तो रूट 3 रूट 2. ठीक है. सो इट मीन्स यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है. 3 है, इट मीन्स 2 of रूट 3 बिकॉज रूट 3 इज हाफ ऑफ 3. सो रूट 3 कॉमन आ सकता है, रूट 3x. सो यहाँ पे रूट 3 बचेगा, x बचेगा माइनस एज इट इज, यहाँ पे बचेगा रूट 2 बिकॉज रूट 3 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया. सो रूट 3x माइनस रूट 2. I hope this is clear children. Similarly in the second 2 terms, रूट 6 है, यहाँ पे 2 है. देखो यहाँ पे रूट 6 है मतलब रूट 3 into रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 बन जाएगा. सो रूट 2 माइनस ऑफ रूट 2 कॉमन. अब माइनस कॉमन क्यों लिया, बिकॉज ये टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए, ये वाली टर्म हमें नेगेटिव चाहिए. यहाँ पे ऑपोजिट है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे. नाउ यहाँ पे रूट 2 निकल आया, सो रूट 3 इज लेफ्ट, एक्स इज लेफ्ट,
यहाँ पे माइनस हो जाएगा एंड √2 इक्वल टू 0. So you see again the bracket becomes same, √3x minus √2, √3x minus √2. तो ये पूरा bracket common हम ले सकते हैं. Now we are left with √3x minus √2. So you see both the brackets are same now. √3x minus √2, √3x minus √2. So what we can do is similarly simply इन दोनों को हम यहाँ पे equal to 0 लिख सकते हैं. So √3x equal to √2, √3x equal to √2, नेगेटिव था ट्रांसपोज हो गया पॉजिटिव बन गया. अब √3 जाएगा डिनोमिनेटर में. So these are the two roots of the quadratic equation. 3x square minus 2 √6x plus 2 equal to 0. √2 by √3, √2 by √3, right? So this was extra version जो हमने डिस्कस किया. और क्यों डिस्कस किया? बिकॉज ऑफ दिस टर्म. ये टर्म को हमने सॉल्व करने के लिए डिस्कस किया कि ये अब हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो है, पर ये इसलिए हम डायरेक्टली स्प्लिट कर रहे हैं बिकॉज ये उससे नहीं होगा उस वे से जो हम क्वेश्चंस करते आए हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पे √6 है और साथ में 2 है, तो उसका एडवांटेज ये है कि 2 है तो उसको 2 टाइम्स हम ऐसे ही लिख सकते हैं, √6, तो वो 2√6 ही होगा प्लस करके. और साइन तो हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करने ही पड़ते हैं, राइट? सो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन एज वेल. Okay, so this was one extra question. I hope you have written this in your notebooks. And with this, we have completed exercise 4.1 and 4.2. Now stay tuned for my next video. In that video, we'll be covering exercise 4.3 now. Okay, so if you still have any doubt in these two exercises, please let us know so that we can clear your doubts as well. And thank you. Stay tuned for my next video. Thank you.